Ladies and gentlemen, अपने लेख पर जोरदार तालियां हो जाए before we begin this evening. Fantastic. Okay. Before I say anything, एक Sanskrit line है, very beautiful line that I want to share with all of you, which is Gyan Gunam Kanchanam Rattasayangam, which means just as gold is valuable, so is the true wisdom that you find from books and reading. I just want to know कि आप लोगों के लिए reading books क्या है? Anything that comes to your mind. Like for me, it's meditative. It's an escape. For all of you, can you just tell me आपके लिए reading क्या है? Books क्या है? Just in one word. Yeah, मैं teacher मैं. You don't need to be scared of me. Knowledge, fantastic. Anyone? Polishing skills. Perfect. Anything else? Sorry? All right. I think. Yeah. Please, any more answers? Empowerment. I think I really want to share this thought with all of you. When I was a kid, little did I know, when my mom used to actually yell at me, Zeenat, get into the habit of reading, and I used to make sure I escape that and throw tantrums so that I don't have to read a book. To standing here in front of all of you with my experience today and realizing that of course माँ हमेशा सही होती है, but also realizing that a book, one right book, rather put it across like that, one right book have the power to transform a human life. Do you all agree with me or not? It's extremely powerful. And today we are here to celebrate that power for a very lovely lady standing here. Ladies and gentlemen, we have a wonderful guest sitting here, but before I call them, I would like to introduce our lovely author here. I can rightly put it across for her that she's beauty with brains, you can see here. Well, she is someone, she loves reading. Okay, she hails from a very small town called Bilaspur, Chhattisgarh, with very big dreams, paving her own path of success to now paving path of success to others through her book. Ladies and gentlemen, can we please have a big round of applause for Isha Agarwal here. Well, Isha, you're looking absolutely lovely. Thank you, dear. Alright, so I'm sure your book is about your journey, your experiences, your learnings, your mistakes, right? I'm really looking forward to read that book. And for that, I would like to call upon our first guest on stage, ladies and gentlemen. He is our guest of honor. So while I call upon him on stage, I would request you all to please show some love. All that love and all that energy that I see here. Please put your hands together, ladies and gentlemen. Our guest of honor, he is the chairman, BJP Transport Cell, Bharatiya Shiv Vahduk Sangatana, Minority Commission Maha-Government. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Haji Arfat Sheikh Ji. आइए सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं. A very warm welcome. मैं नीचे आ जाती हूँ so that our guests have a lot of place to stand here. Alright, our next guest, ladies and gentlemen, is a lovely personality, very vibrant, the founder of, he is the founder of NR Capital. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Shyam Singhania ji. I must confess, मैं sir से usually events पे हमारा मिलना होता है, but whenever I meet him, he's so vibrant, he has such a happy vibe. It's always so wonderful to meet him. Well, with that, ladies and gentlemen, let's move on to our next guest, but he isn't here yet. We're waiting for him. But now I think, Isha, it's time to actually reveal the book, and we have gathered here. But I think ये बहुत इतनी शांति से मुझे बहुत डर लगता है. Come on, we are here to celebrate. So we are going to have some cheering.
some whistles, and until that happens, we're not going to launch the book. Because I believe book launch is just not a launch, it's the birth of a new story. And ladies and gentlemen, come on here, let's celebrate it. Can we please cheer for Isha Agarwal for her first achievement? Fantastic. I request you all to please give a applause for all of us. Fantastic. The strategies for success, we're really waiting for that. Congratulations, Isha Agarwal. We're really waiting for many more achievements for you to come. Alright, so क्योंकि हमने अभी book launch कर लिया, are you guys excited to read this book or not? Yes. अब तो ना बोलने का भी option नहीं है. Well, on a jokes apart, let me request our sir to please say a few words. अगर आप यहाँ पर आए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ बातें सुने. I would request you to please share your words with us. दिल में है अल्लाह का नाम, सुबह पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों को, दोस्तों को हाजी अराफाशी का सलाम। आज खास तौर पर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खास प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला। लॉयर, मैं पूछ रहा था उस दिन कौन से क्रिमिनल भी हूँ, सिविल भी हूँ और बाकी सब हूँ। तो मैंने विजय से बहुत देर तक बात की और मैंने कहा कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आप लिखती हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट पे उन्होंने सोशल सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने बात की कि इस किताब से आम बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा, खास तौर पर अगर सरकार ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया और सारी चीज होगी तो हम पूरे महाराष्ट्र ने देश में कहीं पे भी जो गरीब बच्चे हैं अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो उस किताब से उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। इसीलिए खास तौर पर मैं यहाँ पर चला आया। रमजान का महीना शुरू है, पूरे रमजान भर इबादत में रहते हैं, कहीं जाना होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पूरे 25 साल के जीवन में मेरी शुरुआत स्टूडेंट विंग से हुई, लेकिन एक अच्छा सब्जेक्ट और अच्छी बुक्स लोगों को पढ़ने मिलेगी। खास तौर पर उन गरीब बच्चों तक ये बुक पहुंचेगी और वो आने वाली मंजिल में उस मुकाम तक पहुंचेंगे, मेरा देश तरक्की करे और देश के लोग तरक्की करे। इसीलिए खास तौर पर आज ईशा के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं उनसे वादा करता हूं कि ये किताब हर एक कॉलेज की लाइब्रेरी में तो होगी, लेकिन सरकार की लाइब्रेरी में भी पहुंचाने का काम ये हाजी अराफाशी करेगा। जब तक कि इसको गवर्नमेंट का पूरी कोई भी किताब लिख रहे तो बहुत सारे दुनिया में लेखक है, हम भी कई लेखक को पढ़ते, मैं भी एक लेखक हूं, मैं सूफीज्म पे लिखता हूं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि मेरे ख्यालों के लफ्जों को तोलता है कौन। जब ख्याल आता तभी आदमी सब लिखता है। मेरे ख्यालों के लफ्जों को तोलता है कौन, बता तू नहीं तो अंदर से बोलता है कौन। जब तक के अंदर की आत्मा जब तक नहीं बोलती तब तक आदमी कुछ लिख नहीं सकता, 4 लाइन लिख नहीं सकता। और इन्होंने पूरी किताब लिख दी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। खास तौर पर उनको आशीर्वाद देने के लिए रोहित पोद्दार जी यहाँ पे पहुंचे। उनकी कई आपने सुना होगा, मुंबई शहर के अंदर पोद्दार स्कूल, पोद्दार कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल्स, पोद्दार ग्रुप आज इंडिया में काफी बड़ा ग्रुप है। हर स्टेट में जाएंगे तो इनकी खासियत यह है कि खास तौर पर गरीब बच्चों के लिए ये स्कूल खोलते हैं, जहां जहां इनका प्रोजेक्ट होता है। तो मैंने कहा कि ऐसी किताब आज का उद्घाटन है और देश और दुनिया तक ये किताब जाएगी, तो आप भी उस प्रोग्राम में आइए और आपका भी सपोर्ट पूरा एक ग्रुप का चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि रमजान के महीने में रोजे की हालत में कहूंगा अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी में गम का नाम ना आए। इसी तरीके से आप लिखते रहे और देश और दुनिया के अंदर अपना पैगाम पहुंचाते रहे, जिसके वजह से हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को ज्यादातर सपोर्ट मिले। और जो सपोर्ट देने का आपने काम किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सरकार की ओर से मैं आपका तहे दिल से
मुबारकबाद पेश करके और आपके लिए आगे आने कल अच्छा जाए इसके लिए शुभेच्छा देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। थैंक यू सर, आप इतना अच्छा बोलते हैं और लिखते भी, आज हमें पता चल गया, तो अगली बुक हम आप ही का वेट कर रहे हैं। Well, and thank you so much. I know बहुत मुश्किल था आपके लिए आज आना, but फिर भी आप वक्त निकाल कर आए। Thank you so much for joining us here today. बिल्कुल बिल्कुल सर, thank you so much. पीछे जूम करके ले। Thank you sir, thank you so much, and finally yes sir, thank you so much. रोजा इफ्तार का वक्त है, इसलिए और काफी घर पे कुछ हर रोज कोई ना कोई एमएलए एमपीस आते हैं। आज विधानसभा का भी आखिरी दिन है तो काफी लोग घर पे बैठे, लेकिन वादा किया था इनको कि मैं आऊंगा और अच्छे काम के लिए, अच्छे कार्य के लिए सलाम है, और मैं इनके लिए वहां पहुंचा। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैं सभी लोगों के लिए खासतौर पर दुआ करता हूं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी में गम का नाम नहीं, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद करे और ये देश, ये स्टेट दुनिया का नंबर 1 का देश बने। खासतौर पर आप भी दुआ कीजिए, हम सब अच्छा मिलकर कुछ काम करें। आने वाले कल के अंदर हम सब एक साथ रहेंगे। मेरे लायक कभी भी कोई भी सेवा होगी या हाजी अराफा शेख आपका दोस्त बोलकर, भाई बोलकर आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए इजाजत लेता हूँ। Thank you so much. Alright everyone, so can I have a little more attention? You know, I've taken so much of time. I've got ready, I've come here. आप मुझे थोड़ा सा attention तो दे ही सकते हैं? Yes or no? Alright. So ladies and gentlemen, let's begin. Let's continue this wonderful evening. I really want to have some nice interaction session with you all, but we have little time constraint, so I have to be a little quick here. Once again, everyone, I would like to call upon our lovely author, multi-talented Isha Agarwal on stage, and I request you all to please put your hands together once again while she walks up on stage with me and stand here. Well, Isha, we also have our one more special guest. I'd like to call him once again on stage because उस वक्त हमें मौका नहीं मिला उनसे बात करने का. But he's so busy attending our guests, I've lost him again. Okay. Alright, ladies and gentlemen, please put your hands together for a very lovely personality, Dr. Shyam Ji. Can we please have a big round of applause, everyone? Yes, sir. All right, sir. First of all, sir, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, how do you have this smiley face all the time? Sometimes I get so annoyed and irritated हम daily life में, but how are you so smiling always? There are so many actors here. No, there are so many actors that I've learned from them. Ki even if you are running and going through a stress, how to smile. Well, that was a fantastic answer. Well, Isha would request our lovely personality here to please felicitate him and a very warm welcome, sir. And that is for you. I hope I am not bombing the picture. Absolutely. Actually, because Haji Saab had to leave early, we had to do his book opening and this unveiling in his presence, and he had to go for iftar. We wanted to do this entire function at one go, so we are now doing this in the second round, and so we have no choice but to continue with the book launch and the unveiling of the book after the chief guest. But I would like to invite a few friends here, and we can do the book launch together. So Sanjay Bhai, please come. Sanjay Bhai runs Waterfield Advisors. It's one of the largest investment banks and family offices. They have close to about $4 billion under management.
and he's a great friend. And I would like to call Sandeep ji. He's my old friend from Indian Oil Corporation. He practically runs a huge department of Indian Oil, and thank you Sandeep ji for coming. I would like to call Deepak ji here, who's we work together on two things. One is on the tunneling business, and besides that he guides my life on a daily basis on what to do, what not to do, and whether I'm going to make money and I'm going to make friends or not. Thank you Deepak ji. My very old friend Gupta ji of Global Advertisers, and all the hoardings that we see, and he's given us about 5 hoardings today with Isha plastered on the hoardings. Thank you Sanjeev ji for coming. Rajesh Srivastava, where is he? I don't know. I'm missing out many names, I'm so sorry, but there's very limited space on the dais, and Rajesh is like a younger brother to me, and he's put together this program. And where's Vijay? We can't do an unveiling without Vijay. Come Vijay. And Raghav, my son, you should be here. Those I have missed out, I'm very sorry, because there's a shortage of space, but there's no shortage of space in my heart for everyone. If there's space, can we invite someone else? Otherwise, we can do the honors. And, so, Isha, all to you to do the unveiling. Vijay, if you can give the books to everyone, and yeah. You have to carry the book. We open it together. Manisha, please come. Manisha is the first woman Formula 1 car driver of India. So we must, invite her, because she represents India in all the international circuits. Thank you, Manisha, for coming. Well, congratulations once again, Isha. This is a fantastic evening all for you, and thank you so much for giving us this moment. Discussion with the author, Isha. And as an introduction to Isha, of course, whatever is mentioned on the book and whatever is there on media, but Isha has many qualifications to her as a feather in her cap. She is, first of all, she is from an educationist family from Raipur, and she now actually runs schools and colleges, and but her profession and her passion brought her to Bombay. As an educationist, she's also done law, and she's an advocate. And then she turned into an actor, and now with this book she's an author. So I think she needs great applause, for having so many feathers in her. So I would like to be very quick, in just speaking to Isha for a few minutes so we can understand, what made her write this book. So Isha, I would like to say that from an advocate to an educationist to an actor to an author, how did you do it from Raipur to Mumbai? Not easy. Small town girl with my dream, passion for being Yes, that's true. That's the right answer. Without passion, you cannot do anything. Exactly. Thank you. And what inspired you to write this book on strategies for success? My own failures, my own challenges. So I come from a very small town. We don't get much opportunities, and I had a lot of dreams. So when I started working at a very early age, I struggled a lot. And honestly, there was no much guidance, to get what to do and what not to do. So this book is actually meant for me earlier when I started writing. Wow. And it took 3 years.
during the COVID I did. The best time utilization. So, yes, this book is actually a learning from my failures and challenges, which I wanted to share with the people. They can have this like on a handbook. So does your book focus more on mindset or practical business strategies? Bit of both. Oh. The mindset is basically an important thing, that separates the best from the rest. How did you overcome that? Many. A lot of failures and setbacks. Only one thing I can say, I never give up. No matter what people say, how much they try to pull me back. But I was confident, I know what I want. So yes, I never give up. That's the best thing I can do. Very nice. And how can business leaders implement your strategies in their companies? See, I believe in every sector, they have different challenges. You cannot define one. So it will be injustice with this book if I pinpoint any one thing, this you have to go through and you will sort it. No. If you go through properly, each and everyone can have something from this, for sure. Oh, very nice. And in today's fast-changing world, which success strategies remain timeless? Open communication. It's the best thing, and that's timeless. Can you expand on that? See, time to time, communication styles change, but for the business to continue, I believe communication is very important skill. You can have a plenty of books on communication skill for sure in the market, but now it's so fast-moving world. Technologies is there, so you can commit from one place to another so quickly. So in open communication, I believe that's a timeless thing in business too. Very good. And what role does networking and relationship building play in achieving success? Boosting confidence. Confidence and? Fostering the relationship. That is very important. That's very important. And where can people find your book and how can they connect with you for further insights? This book is available on Amazon, e-Kindle, as well as in the publisher's side. You can get in my website as well. Click on my website. Very nice. So can people buy your book here? It's there. It's there. So I'll urge all of you all to buy a copy, please. Those who have bought the book here, very good. And since time is short, I will request Isha if she can read a paragraph from her book. She can just open any page and just read out something for us. My favorite topic? Anything. 80-20 rules. Yep. The Petro principle or the 80-20 rule state that 80% of result from 20% of efforts. In terms of time management, this principle suggests that individuals should focus on the 20% of the tasks that generate the most value while minimizing the time spent on less productivity activities. Identifying high-impact tasks and prioritizing them can lead to a great success with less efforts. Thank you, Isha. Thank you, sir. Yeah, thank you. So I would like to keep this very short and I would like all of you all to give her a good ovation. Thank you. Well, that was a lovely conversation, and I'm sure, Isha, writing this book wouldn't have been possible without your mistakes, your learnings, your journey. It is truly, truly inspiring, and we're getting an opportunity to witness your journey through your book. So thank you so much. Ladies and gentlemen, once again, can we please have all the love, all the blessings for her through your applauses, and our best wishes for your book. And thank you so much, our lovely people, for joining us today, for giving your support and your blessings to her. Thank you so much. इतना बिजी रहते हुए इस बुक के लॉन्च के मौके पर आए, क्या कारण है और इस बुक के जरिए जो बच्चे या हर वर्ग के लोगों को क्या फायदा पहुंच सकता है, आप मानते हैं? देखिए, कैसा है कि आज हमारी दोस्त ईशा जी ने, ईशा अग्रवाल जी ने एक
अच्छी किताब लिखी। कुछ दिनों पहले मेरे घर पे आके उन्होंने सारी बातें रखी। इस बुक के ज़रिए ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी को, देश के जनता को, इसमें हर कोई स्टूडेंट से लेकर हर कोई पढ़ सकता है। जो अगर वो बिज़नेस फील्ड में जाना चाहता है, कोई बच्चा 12th करके आगे नौकरी करना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन करके करना चाहता है, ऐसे देश विदेश में हम जब देखेंगे, दुबई, सऊदी, बहरीन, मस्कत, कुवैत, हर जगह जाके जहाँ इंडियन स्कूल्स है, जो हमारे बच्चे, उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए जो ये किताब लिखी है, जिसके वजह से बच्चे का और टैलेंट बढ़ेगा, ये अपने आप में खास बात है। इसीलिए खासतौर पर मैंने सरकार में भी मैंने बात की, पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की और कहा कि ऐसी किताब और ऐसे जो लोग हैं जो देश के लिए एक ताकत बनते हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट देना चाहिए। इसलिए खासतौर पर मैं आज रमज़ान रहने के बावजूद भी, रोज़े की हालत में भी मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि ये देश का टैलेंट है और हर कोई चाहता है कि मैं मेरा देश को तरक्की पे ले जाऊँ। देश का अगर युवा अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश बढ़ता है। तो ये किताब के ज़रिए बहुत सारा फ़ायदा होगा, ग्रामीण भाग में खासतौर पर फ़ायदा होगा। कॉरपोरेशन की जितनी स्कूल से लाइब्रेरी में तो रखी जाएगी, लेकिन सरकार की लाइब्रेरी में किस तरीके से रखी जाएगी, इसके ऊपर ये हाजी अरफा से काम करेगा। जब जहाँ जहाँ बोला हूँ 100% वो पूरा किया हूँ और इनका पूरा सपोर्ट देने के लिए खासतौर पर आज देखिए कि कई बड़े स्कूल्स के चेयरमैन और कई सब बड़े लोग यहाँ पे मौजूद है। ज़्यादातर लोग युवा आज इस तरह क्यों जुड़ रहा है, मैं सभी मुंबई और महाराष्ट्र के और देश में जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा आप ये ज़रूरी किताब लीजिए और पढ़िए। खासतौर पर सफ़र में पढ़िए तो बहुत मज़ा आएगा। मैं अक्सर सफ़र में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं किताब की अहमियत जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद सूफीज़म पे लिखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा मैंने कलाम लिख चुके हैं, तो मुझे पता है उसकी अहमियत। कि मेरे वालिद फरमाते हमेशा सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह कि मेरे ख्यालों के लफ्ज़ों को तोलता है कौन, मेरे ख्यालों के लफ्ज़ों को तोलता है कौन, बता तू नहीं तो अंदर से बोलता है कौन। ये अगर ये बोलने वाली आवाज़ है और ईशा ने जिस तरीके से लिखा है और ये सारी जो उनकी बातें इस किताब में आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी किताब नहीं, बहुत छोटी है और आराम से कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है। अब इसको किस तरीके से सरकार की मान्यता होगी, किस तरीके से होगी, उसके ऊपर जाके मैं बिल्कुल इनको मदद करूंगा। मैं तमाम मुंबई और महाराष्ट्र के सभी लोगों से कहूँगा आप बिल्कुल ये किताब, स्टूडेंट्स को कहूँगा, हर क्लासेस को कहूँगा कि इस किताब को देखिए, लीजिए, पढ़िए। कई जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर के अंदर आगे तरक्की करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस किताब के अंदर मिलेगी। किताबें तो बहुत हज़ारों लाखों रोज़ आती है, बनती है, लेकिन कुछ कुछ किताबें ऐसी होती है जो दिल और दिमाग में घर कर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के, बच्चों के, स्टूडेंट और ख़ासतौर पर गरीब बच्चों को फ़ायदेमंद रहेगी। ईशा जी, सक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर, हाजी साहब का यहाँ इम्पोर्टेंट था इस बुक को लॉन्च करने में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल से भी मेरे लिए समय निकाला। एक्चुअली उन्होंने समझा मैंने जो मैसेज देना चाह रही थी इस बुक से, तो उनका ये सपोर्ट है कि वो इसको समझे। मैंने जो उनको बताया कि आगे जनरेशंस को कैसे हेल्प आउट हो सकता है। ये बुक वो सारे चैलेंजेस को डील करने का तरीका सिखाता है, क्योंकि आपको ऐसी किताबें बहुत मिलेंगी मोटी मोटी पर आप कई बार होता है ना कि किताब देख के आप ऐसा लगता है कि बहुत भारी किताब है, कौन पढ़ रहा है, हर चीज़ आप लाइन से याद नहीं रख सकते। ये एक हैंडबुक की तरह है जो आप अपने साथ रख सकते हो, आप इसको कभी भी रेफर कर सकते हो। तो ये सब स्टूडेंट, यंग एग्रेसिव माइंड को ध्यान में रखते हुए लिखा है। ये डिस्कशन मैंने सर के साथ भी किया था घर में आने के बाद, तो इनका पूरा सपोर्ट मिला, तो जो ऑब्वियसली बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं। इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैंने देखा, सर ने भी तारीफ की जी। और आगे क्या प्लान्स है, कौन सी बुक और आने वाली है? प्रेजेंट डिफाइन करता है फ्यूचर का, तो आज इस प्रेजेंट को जीते हैं, इस बुक को एंजॉय करते हैं, इस बुक के मोमेंट हैं, तो आज सिर्फ इसके बारे में बात करें, फ्यूचर का फ्यूचर में रखते हैं, आज का ही डिफाइन करें। ईशा जी, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, लोगों की रुचि कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ने को लेकर कम है, तो आपको नहीं लगता एक ऑडियो बुक की भी साथ में ज़रूरत है? ये अमेज़ॉन किंडल में अवेलेबल है। ये जो ई रीडर्स जो ज़्यादातर गैजेट्स में टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए भी ये बुक अवेलेबल है। ये सिर्फ फिजिकल बुक नहीं है, जबकि किंडल में भी है। तो जो ट्रैवलिंग पे अपने मोबाइल से पढ़ना चाह रहे हैं, आईपैड से पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ईजी अवेलेबल रहेगा। थैंक यू। ये बुक उनको हेल्प करेगा समझने के लिए, फेलियर से आप सीख सकते हो। ये बुक भी मैंने इसी वजह से लिखा है, बिकॉज मेरे खुद के बहुत फेलियर्स हैं, सब रह चुके हैं, बहुत चैलेंजेस रहे हैं, तो इन सब का एक सम अप है। तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू से मैं कई लोगों को शायद हेल्प कर सकूं। तो आप पहली बार बुक लिख रही थी, कैसे डिसाइड किया कि इस तरह की बुक लिखनी चाहिए, और लिखने के बाद क्या एक्सपीरियंस था, आपने पढ़ा जब, क्या सोचा आपने? ये लिखने
लिखने का आइडिया ऐसे बुक की तरह नहीं था। वो खुद के लिए नोट्स बनाती थी, खुद के जर्नल रेडी करती थी पहले, क्योंकि मेरे खुद के काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने कुछ चीज़ें लिखने स्टार्ट की। तो फिर वो धीरे धीरे एक बुक में कन्वर्ट हुआ, और ये इसे कंपाइल करने का आइडिया कोविड के समय आया, बिकॉज तब कोई काम बाहर जाके नहीं करना रहता था, आपको घर पे रहना है। तो उस टाइम को मैंने पूरा यूटिलाइज किया इस बुक को फ्रेम करने के लिए। मैम, आपकी जर्नी भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है, आपने मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी कर रही है और जो है ऑथर भी बन गई है। थोड़ा सा जर्नी के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं, किस तरह की जर्नी रही है? सी, मैं बहुत हम्बल फैमिली से आती हूँ जहाँ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन वाइज आप देखेंगे तो येस, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, फैमिली बिजनेस रखती हूँ, बट मेरा पैशन रहा है एक्टिंग, जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ एक्टिंग की दुनिया में भी थोड़ी बहुत हूँ, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई कह सकते हैं। एंड बुक लिखना तो वो लाइफ का एक जर्नी है जिसे मैंने कवर किया एक बुक के अकॉर्डिंगली। बट यस, ये एक डिफरेंट मल्टीफेसेट प्रोफेशन कह सकते हैं जिसे मैं एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे उन्होंने बुक के बारे में क्या कुछ कहा? अगर आप उस बारे में कुछ शेयर करें, उनका रिस्पॉन्स कैसा था? सी, अभी तक जितने लोगों ने भी ये बुक थोड़ी बहुत पढ़ी है या उनके बारे जाना है, सबने बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट थे हाजी साहब, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि ये बुक इन सब के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैक्सिमम रीच इस बुक का, मैक्सिमम लोग इसके बेनिफिट ले। तो अभी तक तो मुझे सबके अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। इनफैक्ट मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पढ़े, आप लोग के भी टाइम मैनेजमेंट की। हमारे देश में जो है सबसे बड़ा हिस्सा यंगस्टर्स का है, उनके लिए यूजफुल होगा इस बुक को पढ़ना? एब्सोल्युटली, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इसे अपनी जर्नी से रिलेटेड ही लिखा है। जब मैं स्ट्रगल पे रही हूँ, मैं जब कॉर्पोरेट जॉब में गई या अपना बिजनेस हैंडल करने की बात आई, तो क्या फेस करना पड़ता है चैलेंजेस। आपके पास कोई आके ऐसे बता के नहीं जाता कि वो आप ये कर लो और ये मत करो करके। तो मुझे लगता है कि ये यंगस्टर्स के लिए तो बहुत सपोर्टिव है, बिकॉज ये एक हैंडबुक जैसा है, आप इजीली कैरी कर सकते हो, अब जब चाहे पढ़ सकते हो, रादर देन स्क्रॉलिंग एंड गैजेट्स। आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, और आज की यूथ को मेरे ख्याल से बुक से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए रादर देन बाकी चीज़ों के लिए। आई एम श्योर ये बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जो है सोचेंगे कि अब नेक्स्ट बुक कौन सी आ रही है। अभी बहुत अर्ली होगा ये कहना, क्योंकि मैं बेसिकली प्रेजेंट में जीना पसंद करती हूँ। प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है, तो आज प्रेजेंट ये बुक है, इसकी मेमोरीज बनाना चाह रही हूँ। इसके बाद जो भी आइडियाज़ आएंगे ठाकुर जी की कृपा से आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। एज एन एक्टर भी लोग आपको देखना चाहते हैं, अगर कुछ बताएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है उस बारे में अगर अभी मेरी शॉर्ट फिल्म भी शूट हो चुकी है कंप्लीट, वो फेस्टिवल्स पे गई है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि फेस्टिवल्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट जल्दी ही ये आ जाएगा तो आपके पास भी अपडेट्स हो जाएंगे। और कुछ बहुत सारे पाइपलाइंस में हैं म्यूज़िक वीडियोज़ एंड मूवीज़ के। और मैम, आपके फैंस जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? प्लीज़ इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसे ऑर्डर करें। अमेज़ॉन ऑनलाइन में अवेलेबल है, पब्लिशर साइट पे भी है, और इसे पढ़ें और मुझे डेफिनेटली रिव्यू दे, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा फर्दर वर्कआउट करने के लिए। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सारी बेस्ट विशेज़ हैं ईशा जी को। एंड जब भी मैं मिला ईशा जी से, मैंने पहली चीज़ यही बोली कि टाइटल ऑफ द बुक इज़ वेरी नाइस, मतलब आई वुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। पर्सनली मेरे को ऐसी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर द कंटेंट इनसाइड द बुक इज़ ऑल्सो अमेजिंग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट हेल्प बिकॉज ऑफ दिस बुक। और आपके लिए सक्सेस का मंत्र क्या है? मेहनत, बस सिर्फ मेहनत करते रहो एंड डोंट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। आई थिंक दैट इज सक्सेस। आई हैव एंड शुड बी हैप्पी। अगर आप खुश हो तो सक्सेसफुल हो। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर उस बारे में भी? मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता यार, अभी अगले साल आएंगे, बट आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। थैंक यू थैंक यू सो मच।